Okay, hello and welcome back to our YouTube channel. In our previous session of class 12, we have started a new chapter number 1 from the book Rambo. In that chapter, we have studied about an essay which was written by Professor C.V. Raman, who was a prominent scientist of India. He have got Nobel Prize for his works and contribution in physics. He was also famous for his the Raman effect. I hope you remember all these things. But he was an exceptional writer also, along with his scientific field. He used to write essays related to social and basic needs. Like he has written about water. His writing style was very simple. He loves beauty of nature and wants to express it in words. He is witty in his writing. And C.V. Raman had expressed that there is a need in today's life to conserve water, because water is very needful for the basis of our lives on this planet. Let's just take a quick glance on our previous reading that we have read in our last session. Come, let's see. The very first is water is the basis of life. Okay. C.V. Raman had expressed that water is the basis of life. It is the water which is very needful and useful for our human life. It is water that makes everything visible so beautiful. Like in the starting, he has said something in the chapter like human being, the race of human is in search of a divine Amrita. The divine Amrita is in our hands only. It is in our hands only. But we are not knowing this thing, because it is the commonest of all liquids, which is plain water. Along with that, he has given us an example of river Nile. He showed it by two pictorial characters. One was a landscape where there is greenery, there is water, there is vegetation, there was life teeming out of the earth, and on the other side there was a sand, only a sand. Far as you can see, there was no speck of green thing on that particular land. It was just a sea of billowing sand. Why? What makes this difference? The difference was made by river Nile. Because on the one part there was river Nile, the valley of river Nile. There was life, there was vegetation, there was greenery. But on the other side there was nothing like that, only a desert. Because there was no water. This is the difference it makes. Let's move on further and see. Importance of water for the Indian agriculture. Yes. C.V. Raman had said water is really very important for Indian agriculture. As you all know, Indian economy is based on water. And the agriculture is also based on water. Mostly Indian agriculture is based on rainwater, because there is no irrigation, because there is no proper supply of water properly. There is less water. Like in our part, in the part of
It's not. It's not. Water played a significant role in shaping Earth's history, and it is continuing doing so. पानी की वजह से, वाटर की वजह से जो अर्थ का फेज है आज वो हमें देखने को मिलता है. Earth is different from all other planets or all other companions of the solar system. Like in solar system there are 8 other planets, but Earth is having totally a different look and atmosphere. It is because of water. Because water has produced different type of life on this Earth. Water adds to the beauty of a countryside. Yes, water adds a beauty to the countryside. Water adds beauty to a countryside. Like if you are going to a village and if you found on the way a pond where animals in the evening, cattle in the evening, they are quenching their thirst. You see it looks very beautiful. The pond looks very beautiful. The clear water, the trees, the grooves near it, they all things look very beautiful and it gives you an immense pleasure to watch it. Even from the rocks or from a little what we call mountains, small mountains, there is a trickling of water, little water which is trickling from the rocks. It also gives an different and pleasurable look. It also adds to the beauty of these rocks. Rain-fed tanks of South India. Okay, then we have discussed about the rain-fed tanks. What are rain-fed tanks? Rain-fed tanks are tanks. They are shallow tanks which are made to collect the water of rain. In South India, there are many tanks are made by them. They used to collect the rainwater in those tanks. From that tank, the water is used for agriculture. Most of the south, these tanks are helpful in South Indian agriculture. You see, most of the tanks are so large and big. They collect a lot of water in it, and to sit on that particular tank and watch the sunset and sunrise. It seems beautiful. Along with that, the base of tank doesn't even seem, it seems very deep, but it is not very deep. It is shallow because of the silt present in the base. The silt reflects a light and it seems to us that the tank is very deep. In Mysore, mostly rice is grown with the help of these rain-fed tanks. In Mysore के अंदर ज़्यादातर जो राइस ग्रोन होता है, वो राइस जो है is grown with the help of these rain-fed tanks. So we have seen this. In our last session, we have discussed all these points broadly, and we came to know that water is really very important in our life. Let's move on further and discuss what other things are going to be in our chapter. One of the most remarkable facts about water is its power to carry silt or finely divided soil in suspension. क्या? जो एक सबसे remarkable और powerful जो ताकत है पानी की, वो है silt को अपने साथ carry करना. Silt is the fertile soil जो अपने साथ वो suspension यानी पानी के अंदर तैरती हुई carry करता है, क्योंकि बहुत fine particles होते हैं और वो fine particles जो होते हैं वो बहुत ही useful होते हैं. This is the origin of characteristics of color of water in rain-fed tanks. Rain-fed tanks के अंदर जो originally जो color होता है वो silt का ही होता है, जो उसके अंदर हमें दिखता है. This color varies with the nature of earth in the catchment area and is most vivid immediately after a fresh flowing rain. ये जो color है वो अलग-अलग areas में अलग-अलग होता है because the catchment area का मतलब हो गया जो क्षेत्र है जिससे
क्षेत्र से पानी बह के जाता है उस क्षेत्र की जो मिट्टी होगी उसी की कलर की सिल्ट होगी, ठीक है। और जब वो जाएगी और वो जाके किसी रेनफेड जो टैंक्स है बड़े बड़े उनमें जाएगी तो वो क्या दिखेंगे वहाँ, उस सिल्ट का कलर। सपोज समवेयर इज ब्राउन, समवेयर इज लिटिल लेस ब्राउन, somewhere is black, somewhere is red. There is different type of color, and it seems vivid and beautiful when it is the fresh flow of rainwater. जब freshly rainwater जो है वो flow कर रहा होता है, rain हो रही है और water flow कर रहा है अपना silt carry करते हुए, तो जब गिरता है तो वो अलग ही vivid, अलग ही तरीके का उसका नज़ारा। Swiftly flowing water can carry fairly large and heavy particles. The finest particles, however, remain floating within the liquid in spite of their greater density and are carried to great distances. Swiftly यानी तेजी से चलता हुआ पानी जो है, स्पीड से चलता हुआ पानी जो है, वो क्या कर सकता है, काफी हैवी पार्टिकल्स को अपने साथ रोल कर सकता है, ले जा सकता है, बहा सकता है। और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लोट करते रहते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, बट द स्पीड ऑफ वाटर इज मोर देन दैट पर्टिकुलर डेंसिटी एंड फॉर दैट रीजन दे आर कंटिन्यूअसली फ्लोइंग। Such particles are of course extremely small, but their number is great. An incredibly large amount of solid matter can be transported in this way. हाँ, माना कि वो पार्टिकल्स जो है बहुत ही एक्सट्रीमली बहुत छोटे छोटे बारीक, लेकिन उनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा होता है, मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और इस तरीके से बहुत सारी जो बारीक चीज़ें हैं उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है लार्ज नंबर। When silt-laden water mixes with the salt water of sea, there is a rapid precipitation of the suspended matter. This can be readily seen when one who travels by steamer down a great river to the deep sea. The color of water changes successively from muddy red or brown of silt through varying shades of yellow and green and finally to the blue deep sea. Those great tracts of land have been formed by silt thus deposited is evident on an examination of the soil in an alluvial areas. Such land consisting as it does of finely divided matter is usually very fertile. क्या कहना है? ये कहना चाह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा कि अल्टीमेटली जो रिवर्स होती है, जो फ्लो ऑफ नदियाँ जो होती है, वो अल्टीमेटली उनका लास्ट रास्ता क्या होता है, टू मर्ज इनटू द सी, वापस समुद्र में जाकर मिल जाना। अब जब ये इतने सारे पार्टिकल्स जो है वो सिल्ट के जब इसके साथ आते हैं, नदियों के साथ आते हैं, बहते हैं। नाउ सपोज आई ड्रॉ एंड एक्सप्लेन इट। ये माउंटेन्स है बहुत सारे, यहाँ से रिवर जो है वो आती है, माउंटेन्स में से रिवर फ्लो कर रही है। व्हेन अ रिवर इज फ्लोइंग इन तो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स, बड़े स्टोन्स रोल होकर आते हैं। नाउ इट इज ऑन द लैंडस्केप। अब ये लैंडस्केप पर है और सी लेवल से हमारा लैंड ऊपर है, तो जो सी लेवल है ये जो सी लेवल है ये फ्लो करता हुआ, जो ये नदी है ये फ्लो करती हुई यहाँ ऐसे आके इसमें मिलती है। When there is a merge of these, river flows to sea water, तो यहाँ पर क्या होता है, इस मिलने पर प्रेसिपिटेशन होता है, झाग बनते हैं, बुलबुले उठते हैं, और इसकी वजह से जो ये मिट्टी होती है, जो ये कण होते हैं,
वो यहाँ, क्योंकि नदी ऐसे ही जाती है पूरी, यहाँ पे फ्लो प्रॉपर नहीं होता है, ऐसे गिरती चली जाती है। तो इस पर बहुत सारे जो लैंडस्केप पर जो मिट्टी होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, बिखर जाती है, क्योंकि ये प्रॉपर एक इस शेप में नहीं जाती है, डेल्टा फॉर्म करती है। यहाँ ये फ्लो चल रहा है नदी का, ये नदी ऐसे ऐसे करके इसमें एंटर करती है, बिकॉज प्लेन लैंड आ जाता है। जब इस प्लेन लैंड से जब इसके अंदर जा रहा होता है पानी, तो अब वाटर का जो कलर है यहाँ पर मडी है ना, ब्राउन है। अब वो जो एंटर कर रहा होता है तो प्रेसिपिटेशन होता है, और जो मड है, जो मिट्टी है, वो यहाँ पर फैल जाती है इस तलछटी के ऊपर, इस प्लेन लैंड पे फैल जाती है। और जब वो एंटर कर रही होती है तो कभी ग्रीन करके, कभी कुछ करके कलर येलो का होता है, और फिर फाइनली ब्लू कलर हो जाता है। फाइनली पानी ब्लू कलर हो जाता है। और ये चीज़ हम कब देख सकते हैं, जब एक स्ट्रीमर के थ्रू हम लोग सी के थ्रू दिस रिवर वी आर एंटरिंग इनटू, यस वी आर एंटरिंग इनटू सी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। इससे क्या हुआ, अब ये जो मिट्टी यहाँ पर बहुत सारी जो मिट्टी बिखर गई है यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में, ये जो सारी सिल्ट है, सिल्ट कह सकते हो आप, ये बहुत ही एलुवियल सॉइल है। क्या है, एलुवियल सॉइल, वेरी फर्टाइल, बहुत ज्यादा फर्टाइल। इसीलिए कहते हैं कि जो ये एरिया होता है, जब एक मर्जर जो होता है उस एरिया के अंदर जो लैंड होता है वो बहुत फर्टाइल होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल वहाँ पर आता है, जहाँ पर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर बहुत अच्छी है। एक फर्टाइल लैंड उसे हम लोग कह सकते हैं। दिस वाज योर थिंग। लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड रीड इट आउट। The flow of water has undoubtedly played a great part and beneficent one in the geological processes. जो geological processes है, जो अर्थ के processes है, कौन से geological processes? Geo यानी अर्थ, geological processes। जो geological process है उसके अंदर बहुत ही beneficent flow of water, जो flow of water है, फ्लो ऑफ वाटर जो है उसने बहुत ही बेनिफिशियल किया है, क्योंकि ये मिट्टी को क्या करती है, तोड़ते हुए लाती है, बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करते हुए, रोल करते हुए स्पीडली स्विफ्टली लाकर लैंडस्केप पर बिखेरती है। by which the soil on earth's surface has been formed from the rock of its crust। जो पत्थर थे बड़े बड़े, जो बड़े बड़े स्टोन्स थे, उनसे जो क्रस्ट था उससे क्या हुआ, सॉइल फॉर्म हुई। और सॉइल फॉर्म इस फ्लोइंग ऑफ वाटर की वजह से हुई। जब पानी फ्लो करके लाता है अपने साथ तेजी से आता है, क्योंकि ढलान से आता है, तो बड़े बड़े पत्थरों को रोल करता हुआ लाता है और वो टूटते हुए छोटी छोटी मिट्टी की कणों में बदलती जाती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ लॉन्ग ईयर्स, बड़ी धीरे धीरे आता है और ये पूरे मैदान पर छट जाता है। और इसकी वजह से ही फर्टाइल लैंड बनती है, और फर्टाइल लैंड की वजह से ही क्या होता है, अच्छी फसल, ट्रीज वगैरह ग्रो होती है। The same agency, however, under appropriate condition, can also play a destructive part and wash away the soil, which is the foundation of agriculture, and if allowed to proceed unchecked, can have the most disastrous effect on the life of the country। क्या कहना चाह रहे हैं इसीलिए हम कह रहे हैं कि सेम एजेंसी का मतलब यहाँ पर क्या है, यही जो वाटर है, अगर ये ह्यूमन लाइफ के लिए बेनिफिशियल साबित होता है किसी तरीके से, तो ये नुकसानदायक भी हो सकता है। ये वाटर जो है ये प्रॉब्लम भी कर सकता है, खतरा भी बन सकता है। कैसे बनेगा ये खतरा और किस तरीके से बनेगा ये खतरा, ये समझिए आप। प्रॉब्लम कैसे करेगा, जब फेवरेबल कंडीशन नहीं हो, पानी बहुत ज़्यादा बरसात आती है और हम लोग क्या करते हैं, अगर पानी को चेक नहीं करते हैं, if there is no checks, if we do not make burns, dams, और प्रॉपर्ली पानी को चेक नहीं किया जा रहा है या प्रॉपर्ली ट्रीज ग्रोथ नहीं की जा रही है, तो उसी मिट्टी को ये बहवा कर अपने साथ ले जाएंगे आगे। एक सपोज ये फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर ये फर्टाइल लैंड है, यहाँ कोई डैम्स नहीं बने हुए हैं, कोई बर्न्स नहीं बना हुआ है, कोई ट्रीज नहीं है, तो जब पानी फ्लो करके आएगा तो यहाँ की जो मिट्टी है इसको बहा के आगे ले जाएगा, तो इस एरिया को क्या कर देगा, फर्टाइल से
बैरन बना देगा और ये मिट्टी आगे इनके साथ आगे चली जाएगी। तो यही पानी अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से चेक नहीं रखेंगे, प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, तो यही पानी जो है गलत साबित हो सकता है। यही वाटर जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेम एजेंसी कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर ह्यूमन लाइफ। The problem of soil erosion is one of the serious import in various countries, especially in many parts of India. ये जो प्रॉब्लम है soil erosion की, the problem of soil erosion, ये जो soil erosion की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड ओवर और स्पेशली इंडिया के कुछ पार्ट्स में। The condition under which it occurs and the measures by which it can be checked or deserving of the closest study. जिन कंडीशन में ये होती है या ऐसी क्या तरकीबें हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे हम सॉइल इरोजन से बच सकते हैं, सॉइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, तो उस बात को क्लोजली स्टडी करना चाहिए। इसीलिए ये टॉपिक जो है स्पेशली आपने देखा होगा सोशल स्टडीज में भी आपको देखने को मिलता है, यही टॉपिक आपको साइंस में भी एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। सॉइल इरोजन occurs in successive steps. सॉइल इरोजन जो है धीरे-धीरे स्टेप्स में होता है। The earliest of which may easily pass unnoticed. शुरुआती तौर पर जब सॉइल इरोजन होता है तो हमें पता नहीं चल पाता, अननोटिस होता है और पास हो जाता है, हमें आइडिया लगता ही नहीं है कि सॉइल इरोजन हुआ है, बिकॉज धीरे-धीरे इन द लेटर स्टेजेस और आगे के एजेस के अंदर द कटिंग अप एंड वॉशिंग अवे of the earth is only too painfully apparent in the formation of deep gullies and ravines which make all the agriculture impossible. अब क्या होता है आगे के टाइम के अंदर, आगे पीरियड्स के अंदर जैसे जैसे और सॉइल इरोजन होता जाता है वैसे वैसे क्या हो जाता है, जो लैंड है, जो कंप्लीट हमारा जो लैंड है वहां से सॉइल निकल जाता है और रेवाइंस, गलीज ये फॉर्म हो जाती है जहां पर एग्रीकल्चर करना इम्पॉसिबल हो जाता है, खड्डे हो जाते हैं, जमीन कट जाती है, जगह जगह दरारें सी आ जाती है, वो सारी चीजें होने लग जाती है। जो सॉइल इरोजन ऊपर की टॉप सॉइल जो है, फर्टाइल सॉइल जो है वो बह जाती है। तो इसी चीज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो हम ऐसे आगे देखते हैं। ठीक है, ये सक्सेसिव स्टेप्स के अंदर होता है। सॉइल इरोजन हमेशा सक्सेसिव स्टेप्स में होता है। द फर्स्ट स्टेप जो होगा वो अननोटिस पास हो जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन जो आगे होने वाला होता है धीरे धीरे रेवाइंस और गलीज में से निकल के पानी बह जाता है। Sudden burst of excessively heavy rain resulting in large runoff surplus water is the principal factor in causing soil erosion. Soil erosion का सबसे principal factor क्या है? Principal factor of soil erosion is sudden burst of जब बहुत अत्यधिक मात्रा के अंदर बहुत ज्यादा बरसात एक साथ हो जाती है और अगर हम लोग प्रॉपर चेकिंग नहीं करते हैं उस बरसात के वाटर की, तो जो स्पीडीली जब फ्लो होता है वो पानी, वो फ्लो होते हुए क्या करता है लैंडस्केप के ऊपर जो किसी टॉप सॉइल है उस टॉप सॉइल को बहाते हुए अपने साथ आगे ले जाता है। अलॉन्ग विद दैट कई जगहों पर जहां ऑलरेडी सॉइल इरोजन हो चुका है वहां डीप रेवाइंस एंड गलीज की फॉर्मेशन हो जाती है और उसके बाद वहां उस जगह पर एग्रीकल्चर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल फैक्टर है सॉइल इरोजन का। सॉइल इरोजन का प्रिंसिपल फैक्टर है सडन बर्स्ट ऑफ रेन, जो अचानक से बहुत तेजी से बरसात होती है। यही कारण सबसे बड़ा और सिद्धांत जो है मेन। Contributory causes are the slope of land, removal of protective coat of vegetation, the existence of ruts along which the water can flow with rapidly gathering momentum, and the absence
checks on such flow. अब इस चीज के अंदर क्या कंट्रीब्यूट करता है? लैंड का जो ढलान होता है, ठीक है, जिस तरफ ढलान ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा ढलान होगी उतना तेजी से पानी बहेगा। सेकंड चीज वेजिटेशन, जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हम लोगों ने उगाए हुए थे, अगर वो नहीं है, डिफॉरेस्टेशन अगर किया गया है पर्टिकुलर जगह पे और लैंड को ट्रीज पकड़े हुए नहीं है, उनकी जड़ों से स्टेबल नहीं है, तो वो मिट्टी वहां से बह जाएगी और आगे बढ़ जाएगी और टॉप साइड को रिमूव करेगी, रेवाइंस और गलीज का फॉर्मेशन होगा और वहां पर किसी प्रकार की एग्रीकल्चर करना मुश्किल हो जाएगा। और एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स ऑफ फ्लो वाटर, जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको अगर चेक नहीं किया जाएगा, चेक इन सेंस कि अगर बर्न्स, डैम्स वगैरह नहीं बनाए जाएंगे तो चेक नहीं हो पाएगा, चेक नहीं हो पाएगा तो कंटिन्यूस बहेगा मिट्टी को के साथ बाहर। Incredibly large quantities of precious soil can be washed away if such conditions exist. अगर ऐसी कंडीशंस होती है तो आप देखें लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में जो प्रेशियस कीमती मिट्टी जो है, जो इतने सालों में यहाँ धरती पर बनी है और पूरे इस प्लेन पर क्या कहते हैं मतलब बिखरी है, वो बह जाएगी और वेस्ट होके समुद्रों में चली जाएगी, जिसका कोई यूज नहीं रहेगा हमारे यहाँ। As is unhappily too often the case, the menace which soil, the menace to khatra which soil erosion presents to the maintenance of successful agriculture is an alarming one in many parts of India, calling urgently for attention and preventive action. The menace यानी जो खतरा, ये जो सॉइल इरोजन प्रोड्यूस कर रहा है हमारे लिए, हमारे लैंडस्केप के लिए, हमारी एग्रीकल्चर के लिए, अगर इस चीज़ को आज समझकर, सोचकर और प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए गए, इनके लिए कोई हल नहीं निकाला गया, इन चीज़ों से बचने के कोई उपाय नहीं सूझे गए, तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। टॉप साइड पूरी बह जाएगी और लैंड जो है वो बैरन हो जाएगी। The terracing of land, construction of bunds to check the flow of water, the practice of contour cultivation and the planting of appropriate types of vegetation are amongst the measures that have been suggested. It is obvious that the aim should be to check the flow of water at the earliest possible stage before it has acquired any appreciable momentum and corresponding large destructive power. अब क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि इस प्रकार के सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए जरूरी है कि हम लोग बहुत सारा ट्रीज का इस्तेमाल करें, एफॉरेस्टेशन करें। अलॉन्ग विद दैट जो टेरेस करके जो होती है खेती बाड़ी, जैसे ये टेरेसेस है, तो यहाँ पर टेरेसेस करके और खेती बाड़ी की जाए ताकि पानी जो है सभी ग्रासेस को धीरे धीरे मिलता जाए। टेरेस कल्टीवेशन, कॉन्टोर कल्टीवेशन। Along with that, it is very important to make dams and bunds to check the flow of water, the rapid flow of water. अगर हम लोगों के पास कुछ बैंड्स या डैम्स वगैरह नहीं बनी हुई हैं तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर वाटर का फ्लो जो है वो चेक नहीं कर पाएंगे और उसका मोमेंटम जो है वो बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो वो सॉइल को काटते हुए लैंडस्केप को रवाइंस और गलीज में कन्वर्ट करते हुए आगे बढ़ेगी। और इस तरीके की आगे बढ़ना, टॉप साइड को मिटाना, ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो इसीलिए क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने हैं हम लोगों को, बैंक्स बनाने हैं, कंट्रोल फार्मिंग करनी है, कल्टीवेशन जो है वो टेरेसिंग वाला होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एंड मोर और मोर वेजिटेशन को उगाना चाहिए ताकि वहाँ पर पेड़ों की वजह से मिट्टी जो हो होल्ड में रहे। और ऑब्वियस है ये एम टू चेक द फ्लो अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज, अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज पे चेक हो सकता है, एक्वायर्ड एप्रोप्रिएट कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्टिव पावर, अदरवाइज ये बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, लार्ज नंबर पे हो सकता है और प्रॉब्लमेटिक हो सकता है हमारे लिए।
लैंडस्केप के लिए। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे और आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। Describe the formation of silt by river water. River water से किस प्रकार से सिल्ट बनती है वो बताएं आप। Why is water conservation necessary for our country? हमारी कंट्री के लिए वाटर का कंजर्वेशन क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? Water is the basis of life. Elaborate with reference to human, animal and plant. ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ को रेफरेंस करते हुए ये बताना है आपको कि वाटर जो है वो बेसिस ऑफ लाइफ कैसे है, जीवन का अहम हिस्सा कैसे है। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया वाटर के कंजर्वेशन के बारे में, सॉइल इरोजन के बारे में, किस प्रकार सॉइल इरोजन जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और किस प्रकार हम लोग ऐसे मेजर्स, ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि सॉइल इरोजन को चेक किया जा सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा और आपने इसको अच्छे से देखा होगा। बार बार आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं और रीडिंग करते जाएंगे साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे एंड वी विल कैच यू लेटर ऑन टुमारो सेशन। थैंक यू।